initiatives wherein potential investors, बहुत सारे investors हैं, those who want to invest but they don't find anybody with a good business proposal ideas. So a initiative should be taken wherein through this will get to know the potential investors for a business unit. There can be partners or there can be clients क्या wherein they would help the अपने women वाला भी in having their own business अपन भी setup. भेज देते हैं अपनी तरफ से At the same time, various अपन resources क्यों पीछे are needed. How these resources would be available ठीक if a woman want तूने to भेज start their मेल own आईडी नहीं बताई business enterprise. That ठीक है तो guidance कोई need to दिक्कत be provided. कोई दिक्कत नहीं फिर पूछ नहीं नहीं है तो Here, as we have seen, like यार gender जी को neutral मैं फोन लगाता हूँ legislation, अभी थोड़ी this देर में point also, the earlier point we had covered this, eliminating discriminatory practices. Discriminatory practices with regards to the enforcing laws that eliminate discriminating practices and promote fair treatment. Both men and women, equal treatment should be provided in व्यास the को लगा रहा offices, workplace. That should be considered. Same time, implementing gender neutral legislation ensure equal rights and opportunities for women, and it can be in the area of business, employment, education. These are the some of the case studies as we have seen earlier as well. Women-led businesses, community leadership, education, and skill empowerment. So overall, some of the initiatives which are taken, they have performed well, having some of the shortfalls or some of the barriers. Our main focus should be finding out the impact of these initiatives at the same time to check the outcome, to what extent these initiatives have proved. Accordingly, exploring the new initiatives, having a collaboration with industries, with NGOs, wherein a guidance, proper guidance, we can say, would be given to the woman in that particular aspect for the overall development. So, this is all from my side. Thank you so much, ma'am, for such a vivid and informative talk. हमारे पार्टिसिपेंट्स अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मैम से कर सकते हैं दिव्यांशी आपने कुछ लिखा हुआ है तो इफ यू कैन टॉक टू मैम इट विल बी गुड यस सर, मैंने लिखा था सर। एक्चुअली मैम उस समय बता रही थी कि जो इतने सारे इनिशिएटिव्स है, तो मैं जब काम कर रही थी इस पर तो मैंने देखा तो फीमेल्स को बहुत दिक्कत होती है इस मामले में कि जब वो लोग कुछ कोई अगर उनके पास ग्रीवेंसेस होते हैं या फिर कुछ कंप्लेंट होती है कि ये चीज हमको नहीं मिल पाया या जो इनिशिएटिव्स है उसमें हम पूरी तरीके से पार्ट नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ अगर उनके साथ हेल्थ इश्यूज होता है, जो उनको बात करने के लिए एक आदमी चाहिए होता है या जो अथॉरिटी चाहिए होती है, वो उनके साथ इंटरेक्ट शायद नहीं करना चाहती है बहुत जगहों पर। तो ये बहुत बड़ा लैग हो जाता है उन फीमेल्स के लिए। तो ये मैं कहना चाह रही थी। जी एम आई मैम, ऑडिबल? yes. In between voice was lagging, but yeah, fine. Yeah, that is a मैम ट्रू, आपने जो बिल्कुल सही कहा है काफी जगह पे। तो यहाँ पे लाइक किस वे से वी कैन सॉर्ट आउट सम प्रॉपर हेल्पलाइन और गाइडेंस कैन बी गिवन, और जो लीगल राइट्स हैं महिलाओं को उनका अवेयरनेस अगर हम कर पाए तो आई थिंक काफी लेवल तक इशू कैन बी सॉर्टेड। बहुत सी जगह पे अभी अभी भी अगर हम बैंक में जाते हैं, बहुत सारे बार ऐसे होते हैं महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि चेक कहाँ पे ड्रॉप कर, जो बेसिक चीजें हैं उनका अवेयरनेस नहीं होता है, तो वो प्रॉपर अवेयरनेस देना जरूरी है।
with regards to every aspect, wherever, whichever work is there, or whichever aspect or whichever organization is there, यस that मैम, आप सही बोल रही हैं। कर सकते हैं। जी जी। और एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? किसी का और कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल मैम से डिस्कस कर सकते हैं। मैम जैसे हमने अभी हमने केस स्टडीज के ऊपर भी किया था, तो हमने जो बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक वाला केस स्टडी किया था, उसके ऊपर डिस्कस किया था, तो उसमें ये बात आई थी कि वुमेन हैव हायर रेट ऑफ लोन रिपेमेंट। हाँ, और आप भी इसमें दिखा रहे हैं, आपने भी दिखाया 2 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की स्टडीज, तो उसमें भी जो 60% रिपेमेंट रेट था, तो इस डिफरेंस का कोई कारण है क्या मैम? ये जो महिलाओं के रिपेमेंट रेट ज्यादा होती है, इसका कोई कारण हम समझ सकते हैं क्या? यस सर, एक्चुअली रीपेमेंट मतलब जो बैरियर्स है वो काफ़ी लेवल तक रिड्यूस हो पाते हैं। द बिजनेस एक्टिविटीज विच दे आर कंसिडरिंग, और बेसिकली द लोन अमाउंट, लाइक जनरली बिजनेस सेटअप के लिए अमाउंट जो कंसिडर किए जाते हैं, दीज आर नॉट वेरी ह्यूज अमाउंट्स, सो वुड बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉलर अमाउंट्स विच विल बी लाइक बिजनेस एक्टिविटीज जो कंडक्ट हुए किए जाते हैं, through that it is considered as a payment for that all the loans and part, other part. जी जी मैम, वो असल में हमारे डिस्कशन में जो पार्टिसिपेंट्स भी कर रहे हैं, उसमें कुछ डिस्कशन में ये बात बार बार आ रही है कि महिलाओं की रोल स्टडीज में ये पाया गया है कि महिलाओं की लोन रिपेमेंट कैपेसिटी ज़्यादा है, पर जो आपने चूंकि उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में काम हुआ है, तो जनरली ये एक बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उन्हीं की तरफ से ये एटीट्यूड है कि महिला को, लेडी को लोन ना दिया जाए, मतलब वो जनरली प्रेफर नहीं करते। तो ये डिफरेंस क्यों है और कैसे दूर किया जा सकता है? एक्चुअली सर यहाँ पे बेसिक पार्ट इज लाइक महिलाओं का जो रेगुलर इनकम वाला पार्ट जो है, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि दिस बैंक्स दे डोंट अज्यूम कि वुमन वुड बी रीपेइंग विथ रिगार्ड्स टू द वट एवर लोन सैंक्शनिंग के लिए, ऑलवेज ए कंसिडर्ड उनका जो वट एवर अमाउंट ऑफ द लोन जो सैंक्शन हुआ है उसका रिकवरी वो श्योरिटी नहीं होता, बीइंग द बिजनेस आर कंडक्टेड। जैसे आप कोई भी अदर बिजनेस प्लान या बिजनेस प्रपोजल्स लेके जाओ 2 CR का, देन यू हैव अ like many people, many men would be there, गारंटी जो होता है रिकवरी पार्ट का वो कंसिडर टू बी, बट यहाँ पे अगर हम लोग बिजनेस प्रपोजल्स एक प्रॉपर वे से अगर कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ सिस्टमैटिक प्लान और सिस्टमैटिक प्रपोजल फॉर अ बिजनेस डेवलपमेंट, एंड वी आर हैविंग अ टाई अप विद ऑर्गेनाइजेशन, कोलैबोरेशन से अगर कर रहे हैं, तो शायद सर काफी लेवल तक ये जो मुश्किलें हैं वो सॉर्ट आउट हो पाए। जी जी मैम, थैंक यू, और महिलाओं की जो स्किल्स पे अगर थोड़ा फोकस हो जाए। जी जी। हाँ, ऋचा मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी जी हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी इस पॉइंट में रीपेमेंट का। पहली बात तो वो जो मैम ने बताई कि जो अमाउंट होता है, लोन अमाउंट, वो एक एवरेज लो रहता है। दूसरा ये भी है कि महिलाओं का ये आता है, उनकी एक बात ये आती है नेटवर्क की, उन्हें पता है कि हमारा जो नेटवर्क है वो लिमिटेड है, तो और अगर हमने अपने बिजनेस को चलाने के लिए या जो लोन हम बिजनेस जो कर रहे हैं उससे लोन नहीं चुकाया, तो हमें और फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक जो उनकी रीच है वो कम होती है, तो वो एक डर रहता है वो रिस्क लेने का, तो इसलिए वो अपना लोन जो है समय पर दे देती है। पर पुरुषों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें उनका नेटवर्क बड़ा होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक रीच उनकी ज्यादा है, उनके पास प्रॉपर्टीज भी रहती है, वो तो उनको ये रहता है कि पे कर देंगे, अभी नहीं अभी और ले लें, वो लोन पे लोन ले लेते हैं और उसको पे कर देते, क्योंकि उनपे उनके पास जो फाइनेंशियल पावर जो होती है ज्यादा होती है, महिलाओं के पास कम होती है। तो आपके पास अगर पावर कम है तो आप उसका लिमिटेड यूज ही करोगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पहले करोगे। और जबकि पुरुषों का ये है कि उन्हें पता है कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा है, हमारे पास
कुछ तो प्रॉपर्टी रहती है, कुछ वो अपने नेटवर्क के थ्रू उतना अमाउंट रेज कर लेते हैं कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, बजाय इसके कि वो लोन रिपे करने जाए, तो इसलिए वो बाद में लोन रिपे करते हैं। जी जी। ये एक फैक्टर रहता है। मुझे पता है मेरा रिस्क ज्यादा है, मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती, तो उतना ही लेंगे मैं रिस्क लूंगी। लेकिन अगर किसी को पता है कि वो ज्यादा रिस्क ले सकता है, तो वो ज्यादा रिस्क लेके फिर, और बिजनेस में रिस्क आप जितना ज्यादा लेते हैं, वो आप अपॉर्चुनिटीज आपकी आगे बढ़ने की उतनी बढ़ जाती है, अगर आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है तो। और वुमेन के केस में क्योंकि उनकी नॉलेज भी लिमिटेड रहती, फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, ये चीज है हम लोगों में अगर देखी जाए तो इस कारण से हम लोग रिस्क कम लेते हैं, और जो लाइबिलिटीज है उनको पहला पूरा करते हैं। यस मैम, परफेक्टली सेड। एक्चुअली यही सारी चीज़ है कि नेटवर्किंग नॉलेज जो है वो उतना लेवल तक नहीं होता है, और बिजनेस का एक पार्ट है हायर द रिस्क हायर द रेवेन्यू और रिटर्न्स, जो वो पार्ट महिलाओं के लिए कहीं तो एक मिसिंग एस्पेक्ट है। जी मैम जी। सो थैंक यू सो मच मैम। तबीयत आपकी नासाज है, उसके बावजूद आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मुझे थैंक यू सर। उम्मीद है हम लोग आगे और कुछ कोलैबोरेट करें, आपसे निवेदन है। तो थैंक यू सो मच Yes, yes. Thank you so much, sir, for giving me an opportunity. Really, thank you. मैम। Apology from my side No, because no, of no. throat. थोड़ा सा It was a बीमार हो गई very, हूँ। it was a very vivid and informative discussion talk, मैम। तो मेरे ख्याल Thank से you, sir. वॉइस कोई भी किसी भी तरह की वॉइस की कोई समस्या नहीं रही है। इट वाज नॉट, मतलब बहुत ही बढ़िया आपने जिस तरह से इतना इंटरेक्टिव जो प्रेजेंटेशन बनाया, मुझे लगता है आपने बहुत मेहनत की होगी इसके पीछे। तो मैम इतना वक्त निकालने के लिए थैंक यू मैम। जी Thank you, sir. Thank you. जी। Thank you all the audience for being a patient listener. Thank you so much. सर सर वो आरती पटेल की अटेंडेंस नहीं लग रही है, और उसके मोबाइल में से आवाज भी नहीं आ रही, तो वो बोल नहीं पा रही आपसे। ठीक है, विल डिस्कस। उनको बोलिए मुझे मैसेज कर दें। जी ओके। So can I leave हाँ the हाँ meeting? हाँ, जी जी मैम आप। Oh, thank you, sir. थैंक यू सो Thank you मच once मैम। again. जी मैम। सो आज का भी सेशन आज यहाँ पर ख़त्म होता है। बी रेडी विथ योर आइडियाज़। कल हम जो सेकंड सेशन होगा उसमें थोड़ी कुछ चर्चा करेंगे, और वो चर्चा इस बात पे होगी कि ये जो पूरा प्रोग्राम है, चूंकि कल सेकंड लास्ट डे है लेक्चर्स का, 13 तारीख को एक लेक्चर होगा। उसके बाद में हमने जो जो समझा है इस लेक्चर से, ठीक है, इस पूरे जो अभी 28 आवर्स का प्रोग्राम हो चुका है, इसमें जो समझा है हमने सेकंड सेशन में उसकी चर्चा करेंगे। आप अपनी तरफ से आइडिया रखिएगा, और फिर परसों एक लेक्चर होगा। उसके बाद में हम जो 15th है, 15th को हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक। सो आप लोग तैयार रहें अपने व्यूज शेयर करने के लिए। कल फर्स्ट सेशन होगा, फर्स्ट सेशन के बाद सेकंड सेशन में हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वी विल डिस्कस कि ये जो हमारा इतना पूरा 28 घंटों का प्रोग्राम हो गया है, इस 28 घंटे के प्रोग्राम में हमने क्या पाया है, और हम लोग बाहर जाकर सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, और आपकी तरफ से अगर कोई पॉइंट हो इम्प्रूवमेंट का जिस क्षेत्र में किया जा सकता है, या आपको ऐसा लगा हो कि कोई चीज छूट गई है, तो हम इसके ऊपर भी एक डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड वी विल मीट टुमारो 3 PM। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकित सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सो कैन वी, मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ जी। प्लीज आप सब लीव कर सकते हैं मीटिंग। थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके। जी। वही है हाँ? तो रहने दीजिए सर, रहने दीजिए।
हम्म। क्या? हाँ, कर देते हैं। छोड़ दो सर, रहने दो। नहीं नहीं, रहने दो, छोड़